As you people are already aware, CAPF FSC 2024 vacancy is out. Total number of vacancy 506, and it is one of the highest. In fact, in 2009, 10, and 11, this year so many vacancies were there. So in 2009, a total 680 vacancies were there. Okay, 2010 highest ever. 2010 it was 970. 2011 655. Means after 2011 it was 655, sorry, 656 vacancy, but 655 were recommended. So after that, 2011 was last time when more than 500 seats vacancies were there. After that, in last 13 years, vacancies were less than 500. And 2018 it was highest ever in last 10 years, so it was 466. So you are having very good chance. Obviously, BSF is having highest, largest number of vacancy. So total number of vacancy in BSF 186, CRPF 120, CSF 100, ITBP 58, SSB 42. Notification date 24th of April, that is today. Last date of application 14th of May 2024, and exam date 4th of August. So as you are already aware, it is Group A Gazetted Officer, directly appointed Gazetted Officer, which is known as DAGO, equivalent to ACP, Assistant Commissioner of Police in rank, or you can say in a state it is DYSP, Deputy SP. In fact, initially when before UPSC started recruiting this assistant commandant from 2002 onwards. Before that, it was named as Deputy SP, DYSP. So in state police, DYSP is there, and in some places like Delhi, it is known as assistant commissioner. So it is equivalent. So your pay package all are equivalent to IPS officer, but obviously IPS officers are getting timely promotion and they are having extra advantage, posting and all things. But in rank wise, starting you are in same. Every force, in fact, in your force also, if I participate in forces, different forces are getting, for example, different advantage. Let us take in couple of years, CSF is having better opportunity of promotion and all. CRPF and BSF, for example, are delaying their promotion and all, but obviously this is in different time, different things happen, और sometimes CRPF में भी आपके टाइमली प्रमोशन किए गए, बट दैट्स इट. ओके, सो आपके लिए ऑब्वियसली आपके पास चॉइस होता है जब आप DAF फील करते हो. अभी चॉइस का कोई मतलब नहीं है. जो रिटर्न का एग्जाम अभी जो फॉर्म भर रहे हो उसमें आपके चॉइस का कोई मतलब नहीं है. वन यू क्वालिफाई फॉर रिटर्न, एंड जब DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उस समय आपको ऑप्शन देने पड़ते हैं, उस समय आपके पास चॉइसेस देने होते हैं. तब उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फोर्स प्रायोरिटी में चाहिए उसको दोगे. नेशनलिटी एलिजिबिलिटी में नेशनलिटी ऑब्वियसली है, आप इंडियन हो तो ये, और सर्टेन कंडीशंस के साथ आपके नेपाल एंड भूटान. ओके, सो नो पर्सन who is not a citizen of India shall, except with the consent of the central government, signified in writing, be appointed or employed under these rules. Okay, provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrollment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules. तो जो नेपाल और भूटान के सिटीजन हैं उनके लिए भी सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार तो अलाउ है. एंड बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल. इनिशियली देखोगे कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ITBP शायद लास्ट है जिनको अलाउ किया गया फीमेल को, फिर BSF में भी बाद में अलाउ किया गया. तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके जो शुरू में था कि रेस्ट्रिक्शंस था, आज के डेट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ऑल फोर्सेस में मेल एंड फीमेल आर इक्वली एलिजिबल. एज लिमिट आप जनरल कैंडिडेट यदि हो तो 20 से 25 ईयर्स, लेकिन जो आपका एज कैलकुलेट UPSC करती है वो 1 अगस्त. नॉर्मली जो आपका
स्टेट पीसीएस या डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें लास्ट डेट, इनफैक्ट यूपीएससी के भी कुछ जो स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उसमें लास्ट डेट जो फिल करने का, फॉर्म फिल करने का होता है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार होता है वो। लेकिन इसमें क्या है, 1 अगस्त को एज ए पैरामीटर के तौर पर लेते हैं। तो 20 से 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, यानी कि जो 1 अगस्त 2024, that is he or she must have been born not earlier than 2 August 99 and not later than 1 August 2004, means 2 अगस्त 99 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ, इफ यू आर जनरल कैंडिडेट। द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। तो रिलैक्सेबल किसके लिए, यानी कि सो अप टू 5 ईयर्स इफ द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो इसमें आपको 5 ईयर्स ऐड कर लेने हैं, यानी कि 2 अगस्त 1994। और यदि ओबीसी आप हो तो 3 ईयर्स, यानी कि इसमें से आप 3 ईयर्स ऐड कर लोगे तो ये आपका 96। ओके, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉइज जो हैं उनको, और एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सर्विसमैन को भी वो एलिजिबिलिटी मिलेगा। और हाउएवर द टोटल रिलैक्सेशन क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी लिमिटेड टू 5 ईयर्स। तो देखो क्या होता है कि सपोज करो कि कोई कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट हैं और एक सर्विसमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो आपको 5 ईयर्स, यानी कि 25 + 5 30 ईयर्स। कोई ओबीसी है तो 28 + 5 मीन्स 33। कोई SC ST हैं तो 30 + 5 यानी 35। तो ये मैक्सिमम 35। अब एक सर्विसमैन वाले यहाँ क्राइटेरिया नहीं होता है कि जो आप नंबर ऑफ ईयर्स जो सर्विस करते हो उसको एज में माइनस करते हो, वो क्राइटेरिया यहाँ नहीं लागू होता, वो अदर एग्जाम्स में लागू होता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स आपका जो है वो होना चाहिए ग्रेजुएशन। इधर आपका 3 ईयर्स का यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का के तहत, इधर 3 ईयर्स का जो अभी तक चल रहा था 10+2+3, तो इसमें 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन या 4 ईयर का ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी किए हुए हैं वो, बीटेक, बी आर्किटेक्चर और जो भी है, या फिर लॉ का सपोज करो 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, या फिर आप एमबीबीएस के कोर्स हो, तो कोई भी आपको या तो 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन, 4 ईयर का ग्रेजुएशन, और या 5 ईयर का ग्रेजुएशन जो भी है वो उसमें। लेकिन जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, दोज कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन 2024, उनके लिए भी वो एलिजिबल हैं। बट जो आपका लास्ट डीएएफ का जो फिल करने का, तो डीएएफ फिल करने का अभी डेट नहीं है, वो बताया गया है, वो तब बताया जाएगा जब आपका रिटेन का रिजल्ट आ जाएगा, फिर डीएएफ फॉर्म पब्लिश कर देंगे तो आपको बताया जाएगा। तो अपियरिंग कैंडिडेट के लिए अभी आप अपियर हो सकते हो, लेकिन लेटेस्ट टेक ए हाइपोथेटिकल कि 15 अक्टूबर 2024 यदि लास्ट डेट फिल करने का फॉर्म है, तो आपको उस डेट तक आपके पास ये होना चाहिए, आपकी डिग्री मींस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 15 अक्टूबर 2024। Let us say it is not hard and fast 15th October, maybe 20th October, maybe 10th October, maybe 31st October. It will be decided. I'm giving an example. In exceptional cases, obviously, UPSC asked about this, but they are not considering. One thing also you should remember कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो आपके टाइमली ये बने होने चाहिए। ओके, और एक ये जैसे होता ना कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ रीअपियरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड और रिकमेंडेड, जैसे कुछ कैंडिडेट्स का ऑलरेडी हो चुका है कि जैसे आप देखोगे कि इधर कपल ऑफ ईयर्स में क्या हुए हैं, 2019 वाले रिजल्ट से एक तरह से शेड्यूल गड़बड़ हुआ। शेड्यूल गड़बड़ हुआ इन द सेंस है कि 2019 का रिजल्ट जो है 2020 के एग्जाम के बाद आया, सेम सिचुएशन 2020 का रिजल्ट 21 के बाद आया, 21 का रिजल्ट 22 एग्जाम के बाद आया, 22 का रिजल्ट 23 एग्जाम्स के बाद आया। तो ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स का क्या होता है कि डबल टाइम ये सिलेक्शन हो जा रहा है। इसका कारण क्या है, जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनका 21 में रिजर्व लिस्ट में था, बाद में आ गया, और 22 में भी फाइनली सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अदरवाइज ये जो होता है कि वंस आप सेलेक्ट, नॉर्मली क्या होता है कि लेटेस्ट एक 23 वाले से ये साइकिल ब्रेक हो जाना चाहिए कि 24 का एग्जाम जो आपका है 4th
ओके 20 ये 4th का एग्जाम 4th ऑफ आपके ये को अगस्त को है, तो उसके पहले जो है ये आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से होगा कि आप जो कैंडिडेट प्रीवियसली सेलेक्ट हो चुके हैं वो फिर एग्जाम ना दे पाए, वो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज अननेसेसरी आपका जो है वो रिपीटेशन हो जाता है। और जैसे एक्सेप्शन केस में कुछ कैंडिडेट का हुआ कि पहले आप सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लेट अस टेक वन कैंडिडेट हमारे थे, तो 2020 में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो वैलिड नहीं हो पाया, वो प्रॉपर डेट के बाद था, तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया कैंडिडेचर। तो जब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लेकिन फिर आपको लेटर वो भेजते हैं ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, तो जो भी आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देखोगे, ठीक है। जो पोजीशन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट है तो आपको एक तरह से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, और ये पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपको उसका एडवांटेज मिलता है, यू आर गेटिंग एडवांटेज ड्यूरिंग पर्सनालिटी टेस्ट। और ये इसमें से देखो कुछ एग्जाम्स में होते हैं ना कि आपके 5-10 मार्क्स कुछ क्राइटेरिया को दिए जाते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि आपको कुछ मार्क्स कितने दिए जाएंगे, लेकिन हाँ यदि आप किए हुए हो आप तो फिर आपको ये एडवांटेज एक तरह से थोड़ा सा मिल सकता है। नेक्स्ट आपका फी है वो 200 आपको देना होता है, लेकिन जैसे फीमेल कैंडिडेट को नहीं देना है, फीमेल SC ST कैंडिडेट्स उनको छोड़ करके बाकी जो आपको 200 पे करना है। तो आप किसी भी चीज से कर सकते हो, या तो आप SBI के ब्रांच में जा करके, अब नॉर्मल में आज के डेट में कोई एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ब्रांच में जाकर के नहीं करते हैं, आप अपना जो भी है वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट, UPI जो भी करना है वो कर सकते हो। अब कैश जब जमा करते हो तो आपके लिए होता है कि जैसे 14th को लास्ट डे है फिल करने का, तो आप 13th तक ही उसको कैश को जमा करोगे ताकि वो अपडेट हो पाए टाइमली। और यदि आप ऑनलाइन पे करते हो इन किसी भी तरीके से तो आपको सेम डे यानी 14th को इवनिंग में आपका फिल करने का है, तो तब तक आप ये कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट ध्यान दें कि जो आपका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाला, तो ईडब्ल्यूएस वाला का सर्टिफिकेट जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी 23-24 जो है 31 मार्च को बीता, तो यानी इसके इनकम के बेस पे आपका बना होना चाहिए, और जो इशू डेट होना चाहिए 1 अप्रैल से 14 मई 24 के बीच होना चाहिए इशूड, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट 3 ईयर के इनकम का एक्चुअली वो लिखा हुआ नहीं रहेगा आपके सर्टिफिकेट में कि लास्ट 3 ईयर्स के इनकम, बट ये होता है कि लास्ट 3 ईयर्स में एक तरह से आप जो हैं इस इन 3 ईयर्स में आप नॉन क्रीमी लेयर में थे। और यहाँ भी पहले जैसे क्या होता था ना कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट था लास्ट 3 ईयर्स में कभी भी बना हुआ है तो वैलिड है, लेकिन आपका भी ये सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 24 यानी कि इशूड आफ्टर यानी ऑन और आफ्टर, ठीक है ना, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 24 एंड अप टू 14 मई 2024 इस बीच का बना होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। बाद में क्या होता है ना कि आप सेलेक्ट हो गए या आपको इंटरव्यू कॉल मिल गया और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करते हो, तो उसमें से दिक्कत होता है, इस वजह से ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। एक और चीज इस बार एक्स्ट्रा ये है, एवरी टाइम दे आर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, दे आर गिविंग सर्टेन एक्स्ट्रा थिंग्स, ये एक्स्ट्रा इस बार है कि जो फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो आपके जब फॉर्म भर रहे हो उसके लास्ट 10 डेज का होना चाहिए, ये नहीं कि जब जब जिस दिन आप एक तरह से क्या है, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि आज 24 है, तो एक तरह से 14 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, 14 अप्रैल 2024 के पहले का फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। ओके, इंश्योर दैट नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड। लेट अस टेक ये फोटोग्राफ आपका है, तो इसमें पहले हम लोग जैसे
इंजीनियरिंग में फॉर्म भरते थे तो वो करते थे। ये आपका फोटोग्राफ पूरा यदि है तो ये लास्ट वाले में एक तरह से नीचे आपका नेम लिखा होना चाहिए, ओके, एंड आपका डेट जो आप डेट पे लिए हो, तो वो उसमें जब फोटोग्राफ आप लेने जाओगे तो इसमें से आपके एक स्लेट पे लिख करके वो देते हैं और उसको रखोगे और वो आपके फोटोग्राफ में मेंशन रहेगा। द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्युपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, यानी कि जो ये नेम और आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन ये आपका 1/4 से ज्यादा कवर नहीं करना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट their appearance must match with their photograph at each stage of the examination process, that is the time of written and interview or personality test. For instance, if a candidate uploads a bearded photograph, he must appear with the same look in the written and interview or personality test. Same would be the case with spectacles, mustache, etc. अब मान के चलो कि आप स्पेक्स यूज करते हो, ग्लासेस यूज करते हो, तो आपका फोटोग्राफ ग्लास के साथ ही रखो, तब आप उसी लुक में जाओ। अब किसी का जो हेयर है तो वो बड़ा है तो उसी एपियर में होना है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लीन से कर लो, क्लीन हेड को क्लीन करा लो और एग्जाम देने जाओ। तो ये ध्यान रखा जाता है कि ताकि ना रिकॉग्निशन में जो आपका मैचिंग है, आइडेंटिटी मैचिंग में आपका प्रॉब्लम ना हो, ये आपका ध्यान रखना है। ये इस बार न्यू एवरी टाइम, जैसे लास्ट टाइम ये जो आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला, उसको भी लास्ट टाइम ये किए कि आपका 1 अप्रैल से लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का है उसके बीच होना चाहिए। इस चीज को फोटोग्राफ वाले को इस बार न्यू ये किया गया है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको विंडो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका मॉडिफिकेशन है एप्लीकेशन में, जैसे कुछ का गलती हो जाता है तो आपने फॉर्म को डाउनलोड किया हुआ है तो उसको देखो, उसको चेक कराओ किसी से। और वो जो आपको 14th लास्ट आपका फॉर्म फिल करने का है, तो 15th से लेकर के 21st तक आप उसको एडिट कर सकते हो मे में, ठीक है। कोई यदि प्रॉब्लम ऐसा है तो आप एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसी देखो तो जो लास्ट आपके ये कपल ऑफ ईयर्स में, जैसे 23 में ठीक है, 2013 में आपके 424 थे रिटेन, इसमें से 2450 क्वालिफाई हुए थे। 2014 में देखो बहुत कम वैकेंसी था 136, तो 720 लोग रिटर्न क्वालिफाई हुए थे। 2015 में 304 वैकेंसी था तो 1611 कैंडिडेट रिटर्न क्वालिफाई हुए थे। 2016 में 270 वैकेंसी था तो 1307 क्वालिफाई हुए थे। 2017 में 179 था तो 1200 कैंडिडेट्स, इसमें 466 तो 2934 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। 2019 में 330 तो 2215 कैंडिडेट्स। 2020 में 210 सीट्स वैकेंसीज, तो इसमें से आपके 1287 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे। 21 इधर लोएस्ट में से था तो 171 तो 1103 कैंडिडेट्स। 22 में एक्चुअली लास्ट में फिर 233 वैकेंसी हो गया था, ठीक है। ये इनिशियली आया था 253, इसको 233 कर दिया गया था, तो 1474 कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई किए थे। ये 2023 में इनफैक्ट इनिशियली 322 वैकेंसी आया था लेकिन फाइनली 359 कर दिया गया है, तो इसमें 2323 कैंडिडेट्स। अब जो 24 है इसमें 506 कैंडिडेट्स का ये है, तो मान के चलो कि 3300 कैंडिडेट्स के आसपास, 3300 कैंडिडेट्स मोस्ट प्रोबेबली विल क्वालिफाई रिटर्न अप्रॉक्स। वो फिक्स तो है नहीं, वो डिपेंडिंग वेरिएशन थोड़ा सा क्या होता है ना कि लास्ट मार्क्स जो होता है एक्चुअली इसमें ना, चूंकि इसमें पॉइंट्स में आता है, तो आपके पॉइंट्स में आते हैं तब कुछ जो एग्जाम होते हैं उसमें फुल मार्क्स जिसमें निगेटिव नहीं होता है तो कंप्लीट उसमें इंटीग्रल मार्क्स होता है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है तो आपका मार्क्स पॉइंट में आता है। तो यहाँ डिपेंडिंग ऑन है कि उनको 6 to 7 टाइम्स के आसपास कैंडिडेट्स को जनरली 6 to 6.5 6.6 टाइम्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं फिजिकल में बाहर होते हैं, बहुत सारे मेडिकल में बाहर होते हैं, ठीक है। और जो जनरली इंटरव्यू है वो 3 टाइम्स कैंडिडेट होते हैं। ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई ये किए, तो और जो ये आपके एपीआर एग्जाम में, इनफैक्ट देखो लास्ट ये आपके कई ईयर में, यानी 2012 से देखो 21 तक, चूंकि 22 वाला अभी डेटा यूपीएससी ने प्रॉपर पब्लिश नहीं किया, 20 और 23 का तो अभी प्रोसेस में ही है। तो 21 तक देखोगे कि इधर कपल ऑफ ईयर्स में इसमें
लोएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए 79,767, और इधर में हाईएस्ट जो है इस ईयर मैं रिकमेंड हुआ था, इस ईयर भी मैंने एग्जाम दिया था तो रिटन क्वालिफाई हुआ था, इन टू ईयर्स में मैं अपियर हुआ था। तो इधर में देखो 1,12,590 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे, और इधर फिर देखोगे कि 2018 चूंकि इस ईयर में वैकेंसी ही हाईएस्ट था। ओके, सो इधर भी देखो, तो इधर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 3 ईयर्स ऐसे थे जिसमें 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स एक्चुअली में अपियर हुए, और ये इधर जो लास्ट 10+ ईयर्स में ये लोएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर हुए। हमेशा ध्यान रखो कि जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होते हैं तो जनरली इन जनरल 20% लोग होते हैं काफी सीरियस होते हैं। तो सपोज 80,000, तो अब इसको बेंचमार्क एक तरह से इस बार चूंकि ज्यादा वैकेंसी है तो ज्यादा कैंडिडेट्स मान के चलो कि 1,10,000 कैंडिडेट्स मोस्ट प्रोबेबली अपियर होने चाहिए। ओके, सो ये ध्यान रखो कि 3% रिटर्न में करीब एग्जाम रिटर्न में रिजल्ट होगा, और फाइनल के लिए ऑब्वियसली है आपको लेस देन 0.5% में आना होगा। ये एग्जाम है, आप ये जान रहे हो 3 स्टार ऑफिसर आप हो गए। मीन्स 3 स्टार ऑफिसर इन द सेंस है कि आपका इंसिग्निया। ओके, एक 3 स्टार जनरल होते हैं, ठीक है ना, या जो आपके डीजी होते हैं डायरेक्टर जनरल वो 3 स्टार होते हैं। तो 3 स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाईएसपी। और एक कोई भी आपको चूज करना है, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड प्रेफरेंस। वो आपका लास्ट रैंक रहेगा तो प्रेफरेंस का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अभी देखोगे कि सीएसएफ का मैक्सिमम डिमांड होता है, उसके बाद एसएसबी का डिमांड, और बाकी ऐसा नहीं है, एवरी टाइम टॉपर्स जो होते हैं वो भी चूज करते हैं डिफरेंट कोर्सेज। एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, 3 स्टेज है। एक फर्स्ट स्टेज है रिटेन 2 पेपर। पेपर 1 में 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन विद 1/3 नेगेटिव, 250 मार्क्स, यानी कि एवरी क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिल रहा है तो 1/3 उसका नेगेटिव, तो यानी कि 0.66। पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल पेपर 200 मार्क्स का, जिसमें आपके ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी एक्सेट्रा। स्टेज 2 है फिजिकल एंड मेडिकल, इसके मार्क्स नहीं होते हैं लेकिन इसको क्वालिफाई करना, हाफ कैंडिडेट इसमें बाहर हो जाते हैं, ठीक है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, उसके 150 मार्क्स। तो इसमें से मार्क्स अच्छा मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी तक हाईएस्ट 130 इधर कपल ऑफ ईयर्स में, लोएस्ट आपका 45 भी देते हैं। 45 का मतलब है 30% मार्क्स होता है, ठीक है। तो टोटल 600 मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बन रहे हैं। इधर लास्ट 2 ईयर्स में देखोगे तो 345 आपका कट ऑफ, इनफैक्ट फिर बाद में 343 ये आ गया, ठीक है। पेपर सिलेबस जो है आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव, यानी पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइसेस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर फॉलोइंग एरिया: जनरल मेंटल एबिलिटी, जो इसमें 15 16 क्वेश्चंस, कुछ देखो साइंस का न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं लेकिन जनरली 15 16 क्वेश्चंस इसमें है। तो 10th तक का एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं जनरली पूछ रहा है, बट ठीक है, पूछ सकता है। जनरल साइंस, इसमें से साइंस में अभी लास्ट 2019 से देखो तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 28 से 30 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इससे। तो आप एक तरह से 10th तक मेनली है, और बाकी कुछ कुछ जैसे है बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले पार्ट, जो एक तरह से उसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट मान के चलो ज्योग्राफी का पार्ट आता है, लेकिन इसमें से भी कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसमें 28 से 30 इसको अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें भी आपके डिपेंडिंग ऑन 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी आसपास आपके हो रहे हैं, the questions will test the candidates awareness of current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, art, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalization and interplay among nations। तो जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में इसमें से ये करना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी यदि कंबाइंड इसको लो, देखो पॉलिटी को ऐसे हम अलग देखते हैं, इकोनॉमी को अलग, लेकिन इन्होंने साथ में दिया है तो इसका भी कंबाइंड देखो तो डिपेंडिंग ऑन है। जैसे इकोनॉमी में कभी कभी लो एज 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और एज हाई एज 26 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला दोगे तो आपके एक तरह से कंबाइंड यदि लोगे तो 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन रहते हैं।
तो आपका जो है कि द क्वेश्चन आइल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम and the Constitution of India, social system and public administration, economic development in India, regional and international security issues, and human rights, including its indicators. फिर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। अब आज के डेट में ना तीनों के करीब करीब वेटेज बराबर रहते हैं, मॉडर्न, एंशियंट, मेडाइवल, तीनों के। पहले एक टाइम था कि मॉडर्न के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इधर कपल ऑफ ईयर्स में सबको बराबर करीब कर दिया। लेकिन कुछ ईयर में जैसे देखोगे कि एंशियंट का बहुत ज्यादा पूछ दिया, किसी में मेडाइवल का पूछ दिया, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट फिर है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन विल कवर द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी pertaining टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट आपका जो पेपर 2 है उसमें से एसे कम्प्रिहेंशन जनरल स्टडीज। तो इसमें आपके 2 सेक्शन, यानी एक जो 80 मार्क्स के एसे हैं, तो एसे में सिर्फ चॉइस आपका होता है इंग्लिश और हिंदी, और बाकी जो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स हैं वो उसमें चॉइस नहीं है, ओनली इंग्लिश। तो 120 को ओनली इंग्लिश में ये करना है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा, 40 मार्क्स के, यानी 2 × 20 आपके आर्गुमेंट राइटिंग, 2 × 10 ये आपके रिपोर्ट राइटिंग, 1 आपका प्रेसी, 15 मार्क्स का प्रेसी, 20 मार्क्स का रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर 25 मार्क्स, तो उसमें से 3 कंपोनेंट 1 2 3। तो फर्स्ट उसमें प्योर ग्रामर, ये आपका जो है उसमें से सेंटेंस बनाना, आइदर वर्ड्स दिया हुआ है या फिर फ्रेज दिया हुआ है, इडियम्स दिया हुआ है, और 5 जो है आजकल सेंटेंस करेक्शन आता है। तो टोटल आपके 120 मार्क्स जो है इंग्लिश कंपलसरी, और 80 मार्क्स हैं उसमें इंग्लिश या हिंदी आपके पास चॉइस है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो मेल हैं उनको हाइट मिनिमम चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट है 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल। और ये जो मेल का है 81 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर। वेट जो है मिनिमम आपका 50 केजी होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 46 केजी। अब ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो ये आपका स्टैंडर्ड है, और ये टेस्ट जो होगा इफिशियंसी टेस्ट, तो 100 मीटर रेस जो होगा वो 16 सेकेंड मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 सेकेंड। 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकेंड मेल, और 4 मिनट 45 सेकेंड्स फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांसेस दिया जाता है, और फीमेल के लिए 3 मीटर 3 चांसेस। इसमें भी शॉर्ट पुट जो है 3 चांसेस आपको दिए जा रहे हैं, बीच में नहीं दिए जा रहे थे, तो कुछ कैंडिडेट्स ने डिफरेंट फोरम पे इसको उठाया, और फाइनली ये हो गया। और फीमेल के लिए ये नहीं है, ठीक है, फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। रीमेडिकल अभी आज के डेट में देखो तो 22 वाले बैच से ये रीमेडिकल जो किया जा रहा है आपका नेक्स्ट डे कर दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि मिनिमम आपको 45 डेज दिया जाता था, तो ये एक अच्छा होता था कि खास करके ओवरवेट वाले कैंडिडेट्स या किसी का कोई माइनर का ऑपरेशन करवाना है, तो आपके पास 45 डेज मिनिमम होते थे। आज के डेट में नेक्स्ट डे ही कर दिए जाते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, खास करके जो ओवरवेट वाले कैंडिडेट्स हो, तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका आप माइनर का ऑपरेशन करा लेते हो, वो काम हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। ट्रेनिंग आपका 12 मंथ्स का होता है रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमी में आपका, और 2 वीक्स का फिर ब्रेक मिलता है 6 मंथ के बाद। और बेसिक सैलरी जो आपका है पे आपका ये 56,100, ये 7th पे का कमीशन का है, प्लस डीए मान के चलो 85,000 प्लस मिलेगा, और एक्सपेंसेस आपको अपना ये करना है, ठीक है। बुक्स वगैरह देख लो, तो ये पॉलिटी का आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ये तो मस्ट है एक तरह से। अब जस्ट इमेजिन करो पॉलिटी में ना सिर्फ और सिर्फ आप ये भी पढ़ते हो तब भी काम चल जाएगा, इसके अलावा नहीं भी कुछ पढ़ते हो तब भी काम चल जाएगा। बट ठीक, फिर भी है कि आप पढ़ सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th का एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th का एनसीईआरटी, ये पेपर 2 और इंटरव्यू में भी, पर्सनालिटी टेस्ट में भी यूज होगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इस बार इलेक्शन ईयर है तो आपको पढ़ना चाहिए। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको ना पढ़ो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न एनसीईआरटी क्लास 12 का तीनों थीम है उसको, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11 एंड 12 का। और ऑप्शनल इन द सेंस है कि आज के डेट में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, अभी क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से टफ पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ये कर लो, ठीक है ना, कि ऑप्शनल में इसको भी पढ़ लो।
एनसीईआरटी जो ओल्ड वाला है विपिन चंद्रा का, मिडाइवल जो है ओल्ड सतीश चंद्रा का, और एंशिएंट जो है ओल्ड आपका आर एस शर्मा का। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्लास 11th फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों क्लास 11th का है। और क्लास 12th का 2 बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, मैप एटलस। मैप एटलस मैंडेटरी है। और फिर इंडिया के जो अभी रिलेशंस चल रहे हैं जिन कंट्री से, तो यदि हमारे कोई डिग्निटरी हैं, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री विजिट किए हैं, तो उनके बारे में आपको करना है। या फिर आपके कोई फॉरेन डिग्निटरी, जैसे 24 में फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इंडिया के चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में। 23 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। तो वैसे कुछ होते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे अभी ईरान और इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये, और जो आपका रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलता है, कुछ इश्यूज होते हैं। अभी जैसे इंडोनेशिया है, तो वुल्कानो इरप्शन हुआ, तो उसके संबंध में आपको जानना है। फिर आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, और महेश बर्नवाल भी पढ़ सकते हो। इकोनॉमी के लिए क्लास 9th का और 10th का। 9th बस स्टोरी के फॉर्म में है, 10th भी स्टोरी के फॉर्म में है। एक्चुअली मेन पढ़ना जो है आपका 11th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक। और क्लास 12th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक अब माइक्रो भी पढ़ लेना, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमी। अब ये ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रहने दो, इसको मत पढ़ना, ठीक है ना। तो आप मैक्रो और माइक्रो दोनों पढ़ लेना। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो उसके समरी में है, ऐसा नहीं है आप डिटेल नहीं पढ़ने लगोगे, लेटेस्ट वाला जो है। साइंस में एनसीईआरटी 9th 10th को थॉरोली पढ़ोगे, एकदम डिटेल लाइन वाइज। और जो बायोलॉजी है टेक्स्ट बुक क्लास 12th का, उसका यूनिट 8 9 10 9 8 9 पढ़ोगे। और लूसेंट का जो है साइंस वाला पोर्शन देख सकते हो, और करंट डेवलपमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तो बायोलॉजी जो आपका टेक्स्ट बुक क्लास 12th का है, उसमें यूनिट 10, ठीक है। इसमें 8 और 9 साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूनिट 10 जो है वो आप पढ़ लोगे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मार्केट में जो लेटेस्ट करंट अपडेट्स वाले नोट्स हैं उसको, और प्रीवियस ईयर पेपर हर सब्जेक्ट्स में करो, हमेशा ध्यान रखो। प्लस टेस्ट आपको देना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। कुछ जो न्यू अपडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है, उनको उस आधार पे आपको वर्क करना है। हमेशा ध्यान रखो कि थोड़े थोड़े जो चीजें होती हैं उससे आपका मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, उसके कारण आपका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट वगैरह अपना रेडी रखो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। खास करके जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो एससी एसटी वाले हैं, तो उनके पुराने सर्टिफिकेट भी चलते हैं। ये इस वजह से होता ना कि एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स में इनकम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस है तो इनकम और एसेट्स वहाँ इंपॉर्टेंट है। ओबीसी है वहाँ इनकम इंपॉर्टेंट है, तो इनकम वेरी होते रहता है। लेकिन एससी एसटी वाले में इनकम का कोई मतलब नहीं है, एसेट्स का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है एग्जाम्स के संबंध में, जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कर रहे हो, और टेस्ट वगैरह लिखना है, तो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।